the guidelines for Indian government website as well as Web Content Accessible Guidelines 2.0 level AA. The website is accessible to all users. Its web page can be viewed from a variety of devices. Most of the information is in bilingual form. Some part of the information is also available in all regional languages. Director Professor Sriranga Sai is receiving this award. Ali Yavar Jang National Institute for the Hearing Handicap, Maharashtra. महामहिम राष्ट्रपति जी का पुरस्कार वितरण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही श्री मुकुल वासनिक एवं श्री डी नेपोलियन जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम अनुरोध करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक से कि कृपया सभी को संबोधित करें। Respected Rashtrapati ji, Minister of State Shri Napoleon, Shri Acharya, Shrimati Sangeeta Gairola, Chairman of the Rehabilitation Council of India, Chairperson of the National Trust, Honorable Members of Parliament, National Awardees, distinguished guests, ladies and gentlemen. Allow me to extend a very warm welcome to the Honorable Rashtrapati ji, who has so graciously accepted to present the National Awards for the Empowerment of Persons with Disabilities. Even though her engagements had been tied up, she still, out of a deep sense of commitment for persons with disabilities, she decided that she will be present here for this occasion, and we are very grateful to her for sparing her valuable time. I am also happy to welcome the national awardees, distinguished guests, and all the ladies and gentlemen who have taken out time to be present on this occasion. The national awardees whom we have seen receiving the awards just now are shining examples who will inspire many, many people to work for the empowerment of persons with disabilities and also to overcome the challenges of disabilities. Every year on 3rd December, we celebrate the abilities of persons with disability. The annual observance of the International Day of Persons with Disabilities aims to promote a better understanding of disability issues with a focus on the rights of persons with disabilities and gains to be derived from the integration of persons with disabilities in every aspect of political, social, economic, and cultural life. The celebration of this day is an important tool in promoting the rights of persons with disability. In my view, the International Day should not only be a celebration, but an opportunity for us to pause and look both at what we have been able to achieve and what is still left to be done. The differently abled people face so many challenges in the day-to-day life that despite these challenges, persons with disabilities who have displayed great courage and resilience needs to be promoted and encouraged. They inspire us for reaching the highest levels of human achievement. The national awards being presented today are in recognition of those who have shown exemplary courage and commitment to the empowerment of persons with disabilities. For me, this is a very special day since it gives me an opportunity to meet those outstanding individuals who have risen above their adversities to resounding success in various walks of life. Their determination, perseverance, and resolute efforts have helped them in overcoming the challenges, and the shining examples will inspire many others in the days to come. India has been progressive in recognizing the rights of persons with disabilities. The National Policy for Persons with Disability recognizes that persons with disabilities are a valuable human resource for the country
and seeks to create an environment that provides them equal opportunities, protection of their rights, and full participation in society. The national policy is backed by a legislation, the Persons with Disabilities, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act 1995. This act is being reviewed, and we have set up a committee which will come up with a fresh legislation, and we hope that the new legislation will be in order to harmonize our law with the UN CRPD, and I think that will fulfill the aspiration of large number of those who have been working for the empowerment of persons with disability. I believe economic empowerment is the most important aspect in empowerment of persons with disabilities. The government has been promoting employment of persons with disabilities through education and vocational training. Self-employment is promoted through various schemes and programs under which vocational training and loans at concessional rates are provided. Government is mandated to provide 3% reservation in employment to persons with disabilities. In the year 2008, the government announced a scheme whereby the employers share towards Employees Provident Fund and Employees State Insurance Corporation for the first 3 years will be borne by the government for employing persons with disabilities. The scheme has not picked up so far, but we will continue our efforts and follow up with the private sector to respond to this scheme so that persons with disabilities get employment opportunities. As envisaged in the 11th five-year plan document, our ministry proposes to address the needs of persons with hearing and speech impairment by establishing an Indian Sign Language Research and Training Center this year. The aim of the Indian Sign Language Research and Training Center will be to promote the use and spread of Indian Sign Language in cooperation with native sign language users through research, teaching materials, curriculum development, outreach, and awareness programs. Similarly, the ministry has 7 national institutes. We have set up a committee in order to prepare a paper to develop these national institutes into centers of excellence so that they meet the requirement of persons with disabilities. We have also appointed a committee under the DG CSIR to prepare a concept paper on the National Center for Universal Design and Barrier-Free Environment. These are some of the initiatives which we have taken in the past few months. The function to present the awards has been a very inspiring function. The recipients of this year's award are all role models for every one of us. I once again congratulate the individuals and the organizations who have received the awards. I am sure that the awards will spur them on to make even greater efforts and reach greater heights of success and accomplishment. On this occasion, let us reaffirm our commitment to build an inclusive society and rededicate ourselves to the cause of empowerment of persons with disabilities. Thank you very much. सभी पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन किया श्री मुकुल वासनिक जी ने और कहा कि वे उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। साथ ही ये भी कहा कि एक ऐसा अवसर है ये जब हम ये देखें कि हमारी क्या क्या उपलब्धियां हैं और आगे हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। बहुत ही उपयोगी शब्दों में सभी को संबोधित किया श्री मुकुल वासनिक जी ने। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और अब अनुरोध करते हैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से कि कृपया आज के इस अवसर पर सभी को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। महामहिम राष्ट्रपति जी।
सम्मानीय श्री मुकुल वासनिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राज्य मंत्री श्री डी नेपोलियन, श्री के.एम. आचार्य, सचिव, मेजर जनरल रिटायर्ड एंड कार्डोजो, अध्यक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद, श्रीमती पूनम नटराजन, अध्यक्ष राष्ट्रीय न्यास, श्रीमती संगीता गैरोला, अतिरिक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, देवियों और सज्जनों, मुझे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विकलांग सशक्तिकरण पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित होने की बहुत खुशी है। आज हम उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया है जिन्होंने विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी विभिन्न क्षेत्रों में शानदार सफलता प्राप्त की है। मैं प्रभावित हूं उनकी जिद, मेहनत, कड़ी हिम्मत और उत्साह देखकर, जो मैं समझती हूं कि बहुत सारे एबल बॉडीड लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है। बहुत बहुत बधाई। हम आज उनका भी सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह एक ऐसा उपयुक्त अवसर है जब हम उस समावेशी समाज की रचना के अपने सामूहिक प्रयासों के बारे में चिंतन कर सकते हैं, जिसमें विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों सहित समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अवसर प्राप्त हो तथा वे अपनी पूरी क्षमताओं का विकास कर सकें। पूरी दुनिया में लोगों में इस बारे में जागरूकता है कि इस विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाल ही में सीरियाई दौरे पर मैं गई थी। मुझे भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही वहां की एक संस्था है, अमाय संस्था, उसमें जाने का अवसर मिला, जो कि उन व्यक्तियों को इस तरह तैयार करती हैं कि वे समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सके। बच्चों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ वे माता पिता को भी इस बारे में प्रशिक्षित करते हैं ताकि घर पर उन बच्चों की देखभाल कैसे किए जाए वो बराबर समझ सके। उस संस्था में किए जा रहे कार्य को देखकर मैं प्रभावित हुई। भारत में भी इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ रही है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि भारत उन देशों में से है जिन्होंने विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन की सबसे बड़ी पुष्टि पहले दी थी, जो कि 3 मई 2008 को लागू हुआ। हमारी इस पुष्टि से यह प्रदर्शित होता है कि हमारा निश्चय अपने देश के भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को ऐसा परिवेश प्रदान करना है जिसमें समाज और देश के विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए वो समर्थ बन सके। मुझे बताया गया है कि सरकार ने इस विषय में संबंधित सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों, राज्य सरकारों तथा अन्य भागीदारों को साथ में लेकर एक ऐसी समिति गठित की है जो कि विकलांगताग्रस्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन के अनुरूप बदलाव करते हुए उसके स्थान पर नया कानून तैयार करेगी। इसमें विकलांग व्यक्तियों को जरूरतों और उनकी परेशानियों को पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि यह समिति शीघ्र ही नए कानून का संतोषजनक तथा व्यावहारिक मसौदा तैयार कर देगी और इन नीतियों का मूल लक्ष्य उन्हें स्वावलंबी बनाना होगा। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रोजगार तथा प्रगति के मौके मिलते हैं। समावेशी तथा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य सर्व शिक्षा अभियान में किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इसके साथ साथ विकलांगों को माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की नई स्कीम शुरू की गई है, जिसमें माध्यमिक स्तर पर ऐसे बच्चों को सुविधा प्रदान की गई है।
इन स्कीमों का उद्देश्य समावेशी परिवेश में इन बच्चों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करना है, जो कि 8वीं तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं। शिक्षा से भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को इस तरह मानसिक तथा शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाना होगा, जिससे वे दुनिया का सामना कर सके। अतः यह जरूरी है कि इसके लिए समुचित अध्यापन अध्ययन परिवेश हो तथा आसान फॉर्मेट में प्राप्त शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराया जाए। अध्यापकों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वे विकलांगताग्रस्त बच्चों की जरूरतों को समझ सके और इस तरह से उन्हें उपयुक्त ढंग से पढ़ा सके और उनका मार्गदर्शन कर सके। मैं ऐसे सभी शारीरिक प्रतिबंधों को हटाना होगा ऐसा समझती हूँ कि जिनके चलते विकलांगताग्रस्त व्यक्ति भिन्न सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते। साधारण शिक्षण सहायक सामग्री तथा श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, व्हील चेयर तथा ब्रेल लेखन उपकरण जैसे सहायता उपकरणों की व्यवस्था जरूरी है, जो उनके इधर उधर चलने, बातचीत करने तथा दिनचर्या को पूरी करने में सहायक हो सकते हैं। अतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित इस तरह की सहायक सामग्री तथा उपकरणों को किफायती मूल्य पर उन्हें उपलब्ध कराया जाना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में तकनीक की आसानी से प्राप्ति सुनिश्चित करना भी जरूरी है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पिछले वर्ष जनवरी माह से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ऐसा मंत्रालय बन गया है जिससे अपनी वेबसाइट को विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुगम बनाया गया है। यह प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। यह मंत्रालय को इसका बुनियादी डिजाइन तथा उसकी सुविधाओं को अन्य मंत्रालयों से के साथ बांटना चाहिए ताकि वे भी इस दिशा में आगे बढ़ सके। कई अन्य भी इस दिशा में कार्य कर चुके हैं। यह भी एक अच्छी बात है कि राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई श्रेणी अर्थात सर्वोत्तम सुगम्य वेबसाइट की शुरुआत इस वर्ष की गई है। विश्व में ऐसे बहुत ही प्रख्यात वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, गीतकार, चित्रकार, कवि, नृतक और खिलाड़ी हुए हैं जो किसी न किसी विकलांगताग्रस्त से ग्रस्त थे। इन सभी व्यक्तियों ने दृढ़ निश्चय तथा अदम्य धैर्य से इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने परिवार को और समाज की उन्होंने सेवा की। समाज के किसी भी विकलांगताग्रस्त व्यक्ति की समानता के आधार पर पूर्ण तथा कारगर सहभागिता प्राप्त करने में इस बात से सहायता मिल सकती है जब वे समाज की गतिविधियों में भाग ले और उसके प्रति होने वाले व्यवहार समुचित हो। हमें इन व्यक्तियों की गरिमा और पूर्ण सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और उनके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक एकीकरण सुनिश्चित करने में परिवार, समुदाय तथा संपूर्ण समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज में जो पूर्वग्रह मौजूद है और खासकर मानसिक विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के बारे में उन्हें सतत शिक्षा तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से खत्म करने की जरूरत है। इस आंदोलन का नेतृत्व सिविल समाज के संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थानों को करना चाहिए। खासकर ऐसी महिलाओं और बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है तथा जो ग्रामीण इलाकों और शहरी झुग्गियों में रहते हैं, क्योंकि वे सबसे अधिक वंचित समूहों से है। इसके अलावा समाज की समस्या की रोकथाम का शीघ्र निदान ऐसे दो महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में मैं जागरूकता पैदा करने की जरूरत समझती हूँ। इस विषय में समेकित बाल विकास योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक स्कीमों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी है और मैं संबंधित मंत्रालयों से आग्रह करूंगी कि वे अपनी स्कीमों का कार्यान्वयन करते हुए इस पहलू पर समुचित जोर दें। रोग प्रतिरक्षा तथा रोग की रोकथाम, स्वच्छता में सुधार, बेहतर पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य सेवा,
मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, ऐसे उपायों पर गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का आर्थिक सशक्तिकरण एक प्रमुख मुद्दा है। इस समय उनके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर कम है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, परंतु विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित बकाया जो खाली जगह है, सभी सरकारी संगठनों के सुव्यवस्थित प्रयासों के जरिए वो भरी जानी चाहिए। इसी प्रकार निजी क्षेत्र को अपने प्रतिष्ठानों और उद्योगों में और अधिक विकलांग लोगों को रोजगार देने के लिए आगे आना चाहिए। सही माहौल और सही काम, इसके चुनाव का अवसर मिले तो इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि विकलांग व्यक्ति किसी भी तरह से किसी से भी कम नहीं है। कौशल विकास की नई स्कीमों को पूरी तरह विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी तथा नौकरी के बाजार की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्राप्त कर सकें। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को इस संबंध में मिलकर काम करना होगा। इन्हीं दोनों क्षेत्रों को मिलकर काम करना होगा। अंत में मैं इस बार फिर जोर देना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की असमर्थता या अपंगता की परवाह किए बिना सभी भारतीयों को विकास की अपनी पूरी क्षमता के उपयोग का अधिकार है। इसलिए एक मजबूत नीतिगत ढांचे के अलावा हमारा आपूर्ति तंत्र एकदम कुशल व प्रभावी होना चाहिए। केंद्र और विशेषकर राज्य सरकारों को एक सर्वसमावेशक समाज के निर्माण के अपने प्रयास में सिविल समाज और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करनी चाहिए। मैं पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए हम सब मिलकर सभी के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए प्रयास करने का आज संकल्प करें। धन्यवाद। जय हिंद। सभी पुरस्कार विजेताओं ने शारीरिक विकलांगता के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में शानदार सफलता प्राप्त की है। सरकार ने एक समिति गठित की है जो विकलांगजनों के बारे में नया कानून तैयार करेगी, जो कानून विकलांगजनों के हितों की और भी अधिक रक्षा करेगा। बहुत ही सार्थक शब्दों में अपनी बात कही महामहिम राष्ट्रपति जी ने, और साथ ही ये भी कहा कि अवसर मिले तो विकलांग व्यक्ति किसी से भी कम नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब जेपीएम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नई दिल्ली के दृष्टिबाधित छात्र श्री शुभम आर्य सभी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। Your Excellency, the President of India, Honorable Minister for Social Justice and Empowerment, and Honorable Minister for State for Social Justice and Empowerment, recipients of National Awards for the Empowerment of Persons with Disabilities for the year 2010, distinguished guests, ladies and gentlemen, we express our profound gratitude to Madam Rashtrapati Ji for sparing her valuable time and conferring the National Awards on outstanding persons with disabilities and on individuals and institutions for their remarkable work for the cause of empowerment of persons with disabilities. This is a great honor for all the differently abled persons in the country, as it symbolizes their indomitable courage, commitment, and above all, the triumph of the human spirit over adversities. Your gracious presence, Madam, will further inspire and strengthen their commitment to excel in every field in life. Also, they will always cherish the blessings you have showered on them today. We are grateful to our Honorable Minister, Social Justice and Empowerment, for his wholehearted support and guidance in all our efforts and protecting the rights and dignity of the persons with disabilities. We are obliged to our Honorable Minister of State for Social Justice and Empowerment for his sensitivity towards the issues concerning persons with disabilities.
Both the honorable ministers constantly keep inspiring and motivating us to do our best. We also thank the Doordarshan, All India Radio, and all the press and media persons for their role in disseminating information about this function. They play a significant role in integrating the differently able persons in the society. We also thank the Delhi Police and Vigyan Bhavan officials for their support in making the arrangement for this function. We are very grateful to the distinguished guests present and to all those who have worked to make this function a success. In the end, we would like to thank the awardees in whose footsteps we hope many others will follow. We are sure that they will continue to inspire all citizens to play their role in ensuring equal opportunities and rights to persons with disabilities. Thank you. Jai Hind. श्री शुभम आर्य का हम आभार व्यक्त करते हैं। सभी पुरस्कार विजेताओं का पुनः अभिनंदन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कार्यक्रम का हम यहाँ समापन करते हैं। अब होगा राष्ट्रगान। कृपया खड़े होकर इसमें अपना सहयोग दें। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध है, कृपया महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कृपया मंच पर आएं। सभागार में उपस्थित अन्य सभी अतिथियों से अनुरोध है कि महामहिम के प्रस्थान तक कृपया वे अपने स्थान पर ही रहें।